آئیں ہم کچھ وقت خدا کے کلام کا مطالعہ واز بعنوان یہودا اسکریوتی کا ایمان کے تحت کرنے میں گزارتے ہیں۔ جیسا کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہودا اسکریوتی یسوع کے 12 شاگردوں میں سے ایک تھا۔ 12 شاگردوں میں سے ایک یہودا اسکریوتی کیوں یسوع کو پکڑوانے آیا تھا؟ کتاب مقدس میں درج بیان کے مطابق یہ اس کی مادی چیزوں کا لالچ اور خواہش تھی جس نے اس کی آنکھیں سچائی سے اندھی کر دی تھیں۔ آخر میں یسوع نے اس کے بارے میں گواہی دی یہ کہتے ہوئے کہ اگر وہ آدمی پیدا نہ ہوتا تو اس کے لیے اچھا ہوتا۔ ایسا نہیں ہے کہ مادی چیزیں خود ہماری زندگیوں سے غائب ہو جائیں، تاہم مادی چیزوں کی وجہ سے ایمان کو چھوڑنا، سچائی کو ترک کرنا اور خدا سے غداری کرنا جیسے احمقانہ کام صیون میں ہرگز نہیں ہونے چاہیے۔ آئیں ہم اکٹھے پہلا تیموتھیوس باب 6 آیت 7 سے دیکھتے ہیں۔ کیونکہ نہ ہم دنیا میں کچھ لائے اور نہ کچھ اس میں سے لے جا سکتے ہیں۔ بس اگر ہمارے پاس کھانے پہننے کو ہے تو اسی پر قناعت کریں۔ لیکن جو دولت مند ہونا چاہتے ہیں وہ ایسی آزمائش اور پہندے اور بہت سی بےہودہ اور نقصان پہنچانے والی خواہشوں میں پھنستے ہیں جو آدمیوں کو تباہی اور ہلاکت کے دریا میں غرق کر دیتی ہیں۔ کیونکہ زر کی دوستی ہر قسم کی برائی کی جڑ ہے، جس کی آرزو میں بعض نے ایمان سے گمراہ ہو کر ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ بہت سے عوامل ایسے ہیں جو ہمیں ہمارے ایمان سے دور لے جا سکتے ہیں۔ دنیاوی عزت کی خواہش کی وجہ سے، کبھی مادی چیزوں کے لالچ کے باعث، کبھی مخالف جنس سے متعلق مسائل کی وجہ سے، اور ان کے علاوہ بھی بے شمار باتیں ایسی رکاوٹیں اور ٹھوکر کے پتھر بن جاتی ہیں جو ہمیں آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے سے روکتی ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہودا اسکریوتی کے معاملے میں یہ پیسے کی وجہ سے تھا، کیونکہ زر کی دوستی ہر قسم کی برائی کی جڑ ہے جس کی آرزو میں بعض نے ایمان سے گمراہ ہو کر اپنے دلوں کو طرح طرح کے غموں سے چہلنی کر لیا۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آیت 11 سے دیکھتے ہیں۔ مگر اے مردی خدا، تو ان باتوں سے بھاگ اور راست بازی، دینداری، ایمان، محبت، صبر اور حلم کا طالب ہو۔ ایمان کی اچھی کشتی لڑ، اس ہمیشہ کی زندگی پر قبضہ کر لے جس کے لیے تو بلایا گیا تھا اور بہت سے گواہوں کے سامنے اچھا اقرار کیا تھا۔ یہی وہ بات ہے جو کتاب مقدس بیان کرتی ہے۔ واقعی ہم کیسے آسمان کی ابدی بادشاہی میں لوٹ سکتے ہیں؟ ہم کیسے خدا کے سامنے بے داغ اور بے عیب کھڑے ہو سکتے ہیں؟ کیا ہمارے خیالات بھی اسی جانب مرکوز نہیں ہونے چاہیے؟ جہاں کہیں مادی نفع کی پیشکش کی جاتی ہے، وہاں یقینی طور پر ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں جہاں یہ جائز ذرائع سے حاصل کیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود ناراست طریقوں سے حاصل ہونے والی بے شمار آزمائشیں بھی ہمارے سامنے آ سکتی ہیں۔ آج کے واز بعنوان یہودا اسکریوتی کا ایمان کے ذریعے ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ اگرچہ یہودا یسوع کے 12 شاگردوں میں سے ایک تھا، پھر بھی ہمیشہ اس کے ساتھ کیا چیز موجود رہی؟ ہم یوحنا کی انجیل باب 12 آیت 1 کی طرف جاتے ہیں۔ پھر یسوع فصح سے 6 روز پہلے بیت انیاہ میں آیا جہاں لازر تھا جسے یسوع نے مردوں میں سے جلایا تھا۔ وہاں انہوں نے اس کے واسطے شام کا کھانا تیار کیا اور مرتھا خدمت کرتی تھی، مگر لازر ان میں سے تھا جو اس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے۔ پھر مریم نے جٹاماسی کا آدھ سیر خالص اور بیش قیمت عطر لے کر یسوع کے پاؤں پر ڈالا اور اپنے بالوں سے اس کے پاؤں پونچھے اور گھر عطر کی خوشبو سے مہک گیا۔ مگر اس کے شاگردوں میں سے ایک شخص یہودا اسکریوتی جو اسے پکڑوانے کو تھا کہنے لگا، یہ عطر 300 دینار میں بیچ کر غریبوں کو کیوں نہ دیا گیا؟ اس نے یہ اس لیے نہ کہا کہ اس کو غریبوں کی فکر تھی، بلکہ اس لیے کہ وہ کیا تھا؟ چور تھا۔
दूसरे लफ्जों में वो पैसे चुराता था, और चूंकि उसके पास उनकी तहेली रहती थी, उसमें जो कुछ पड़ता वो निकाल लेता था। वो रूहानी और जिस्मानी दोनों लिहाज से चूर था, जिसने खुदा के मुकद्दस हदियों पर हाथ डाला था। बस यीशु ने कहा कि उसे ये इत्र मेरे दफन के दिन के लिए रखने दे। यहूदा ने ये बात गरीबों की हकीकी फिक्र की वजह से नहीं कही थी, बल्कि इसलिए कि अगर वो कीमती इत्र बीच दिया जाता और वो 300 दीनार थैली में डाल दिए जाते, तो उसके लिए उन पैसों में खियानत करने के बहुत से मौके पैदा हो जाते। चूंकि इत्र बीचा नहीं गया था बल्कि तोड़कर यीशु के लिए उंडेल दिया गया था, इसलिए वो बर्दाश्त न कर सका। आज जैसे कि आप और मैं यहूदा इस्करियोती के मकाम पर गौर करते हैं, जो थैली का निगरान था, तो सवाल यह है कि आजमाइश हमेशा कहां से पैदा होती है? ये हमेशा करीबी चीजों से पैदा होती हैं। यहूदा इस्करियोती के मामले में उसे थैली सौंपी गई थी, पर वो मुसलसल उसमें से चोरी करता रहा। इसीलिए किताब मुकद्दस उसे चोर के तौर पर बयान करती है। क्या ये सही नहीं है? आखिर में यहूदा इस्करियोती ने अपने आप को उस राह पर पाया जो आसमान की बादशाही को नहीं बल्कि अब्दी जहन्नम को ले जाती है। आजमाइश हमेशा उस चीज से पैदा होती है जो हमारे करीब होती है। जैसा कि हम आदम और हव्वा की तारीख में देखते हैं, चूंकि हव्वा नेक व बद की पहचान के दरख्त के पास ठहरी रही, इसलिए शैतान की आजमाइश में पड़ गई। उसने देखा कि वो फल खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अक्ल बख्शने के लिए खूब है। वाकई हर आजमाइश हमारे करीबी हालात से पैदा होती है। फिर भी ऐसी आजमाइशों में हमारा अब्दी अंजाम एक ही लम्हे में तय हो जाता है कि हम अब्दी जहन्नम का इंतखाब करते हैं या आसमान की बादशाही का। आप सब क्या कोई नतीजा बगैर किसी सबब के होता है? इसलिए आए हम सब दयानतदारी से खुदा के कलाम, आइन व कवानीन और अहकाम पर अमल करने वाले बने, ताकि उनके फजल से हम सब आसमान की बादशाही में पहुंच सकें। आए हम यूहन्ना बाब 13 आयत 21 की तरफ जाते हैं। ये बातें कहकर यीशु अपने दिल में घबराया और ये गवाही दी कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से एक शख्स मुझे पकड़वाएगा। शागिर्द शुबा करके कि वो किसकी निस्बत कहता है, एक दूसरे को देखने लगे। उसके शागिर्दों में से एक शख्स जिससे यीशु मोहब्बत रखता था, यीशु के सीना की तरफ झुका हुआ खाना खाने बैठा था। बस शमौन पतरस ने उससे इशारा करके कहा कि बता तो वो किसकी निस्बत कहता है। उसने उसी तरह यीशु की छाती का सहारा लेकर कहा कि ऐ खुदावंद, वो कौन है? यीशु ने जवाब दिया कि जिसे मैं नवाला डबू कर दे दूंगा वही है। फिर उसने नवाला डबूया और लेकर शमौन इस्करियोती के बेटे यहूदा को दे दिया। और इस नवाला के बाद शैतान उसमें समा गया। बस यीशु ने उससे कहा कि जो कुछ तू करता है जल्द कर ले। मगर जो खाना खाने बैठे थे, उनमें से किसी को मालूम ना हुआ कि उसने ये उससे किस लिए कहा। इसी तरह जब एक शख्स मुसलसल खुदा के मुकद्दस हदियों का लालच करता है और उनमें बुरा हाथ डालता है, तो हतमी नतीजा ये निकलता है कि शैतान उसके दिल में दाखिल हो जाता है। यहूदा इस्करियोती की मिसाल के जरिए हमें इस मुस्तकिल याद दहानी पर गौर करना चाहिए कि हमें ऐसे लोग बनना है जो रास्तबाजी, दीनदारी और सच्चाई के साथ खुदा की बादशाही की अपनी उम्मीद को मजबूती से थामे रखें। आज की दुनिया में बहुत से लोग मादी चीजों की ख्वाहिश में मुब्तिला हैं। बहुत से लोग ये मानते हैं कि पैसा वो कलीद है जो दुनिया का हर मसला हल कर सकती है। अगरचा ये किसी भी जमाना में दुरुस्त हो सकता है, लेकिन किताब मुकद्दस हमें बताती है कि आखिरी दिनों में ऐसी जहनियत खास तौर पर गालिब हो जाएगी। ऐसे वक्त में हमें खुदा के हजूर ज्यादा पाकीज़गी और दीनदारी का ताक़ुब करते हुए हर रोज ये पूछना चाहिए कि खुदा की मर्जी क्या है। आए हम इस जमीन की मामूली चीजों से अंधे हो जाने और आसमान की बादशाही को खूने की हमाकत का इर्तिकाब न करें।
अगर यहूदा इस्करियोती ने जो यीशु के साथ था अपने ईमान को आखिर तक पतरस, यूहन्ना और याकूब की तरह खालिस और रास्त रखा होता, तो वो आज आसमान की बादशाही में यीशु के साथ कितनी मुसरत के साथ जिंदगी गुजार रहा होता। ताहम उसकी मुकद्दस हदिये में हाथ डालने की बुरी आदत ना गुज़ीर तौर पर उसे 30 चांदी के सिक्कों के इस यीशु को बीचने और अब्दी जहन्नम को चुनने की बुरी राह पर ले गई। आप सब खुदा कहते हैं आदमी जो कुछ बोता है वही काटेगा। आखिरकार क्या ये रोजमर्रा की जिंदगी का नतीजा नहीं था, जहां उसके ख्यालात, उसका ईमान और उसकी रूह खुदा की बादशाही के लायक नहीं थे? किताब मुकद्दस क्या कहती है कि उसमें कौन सी रूह दाखिल हुई थी? यूहन्ना की इंजील के 13वें बाब में हमें बताया गया है कि शैतान उसमें समा गया। जैसे ही शैतान उसमें समाया तो वो उन लोगों के साथ मिल गया जो यीशु को कत्ल करना चाहते थे। हम मत्ती बाब 26 आयत 12 की तरफ जाते हैं। और इसने तो मेरे दफन की तैयारी के लिए ये इत्र मेरे बदन पर डाला। मैं तुमसे सच कहता हूं कि तमाम दुनिया में जहां कहीं इस खुशखबरी की मुनादी की जाएगी, ये भी जो इसने किया इसकी यादगारी में कहा जाएगा। उस वक्त उन 12 में से एक ने, जिसका नाम यहूदा इस्करियोती था, सरदार काहिनों के पास जाकर कहा कि अगर मैं उसे तुम्हारे हवाला करा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 रुपए तोल कर दे दिए और वो उस वक्त से उसके पकड़वाने का मौके ढूंढने लगा। इसी तरह यहूदा इस्करियोती उन लोगों के साथ जा मिला जो हमेशा यीशु की दी हुई खुशखबरी में रुकावट डालते और उन पर बुहतान लगाते थे ताकि यीशु को मसलूब करें। वो आसमान से गिरी हुई बदरूहें थीं जिन्होंने जमीन पर अपना फरेब दे काम जारी रखा। हम मत्ती बाब 27 आयत 1 की तरफ जाते हैं। जब सुबह हुई तो सब सरदार काहिनों और कौम के बुजुर्गों ने यीशु के खिलाफ मशूरा किया कि उसे मार डालें, और उसे बांध कर ले गए और पिलातुस हाकिम के हवाला किया। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने यह देखा कि वो मुजरिम ठहराया गया तो पछताया और वो 30 रुपए सरदार काहिनों और बुजुर्गों के पास वापस लाकर कहा, मैंने गुनाह किया कि बेकसूर को कत्ल के लिए पकड़वाया। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू जान। और वो रुपयों को मकदिस में फेंक कर चला गया। उसने क्या किया था? और जाकर अपने आप को फांसी दी। सरदार काहिनों ने रुपए लेकर कहा, इनको हैकल के खजाना में डालना रवा नहीं, क्योंकि ये खून की कीमत है। बस उन्होंने मशूरा करके उन रुपयों से कुम्हार का खेत परदेसियों के दफन करने के लिए खरीदा। इस सबब से वो खेत आज तक खून का खेत कहलाता है। इन तमाम वाकयात में खुदा की मर्जी काम कर रही थी ताकि वो नबूवत पूरी हो जो दर्ज की गई है। आयत 8 से जारी रखते हैं। इस सबब से वो खेत आज तक खून का खेत कहलाता है। उस वक्त वो पूरा हुआ जो यिर्मयाह नबी की मारिफत कहा गया था कि जिसकी कीमत ठहराई गई थी, उन्होंने उसकी कीमत के वो 30 रुपए ले लिए। उसकी कीमत बाज बनी इसराइल ने ठहराई थी और उनको कुम्हार के खीत के लिए दिया, जैसा खुदावंद ने मुझे हुक्म दिया। इस जमीन पर किया गया हर काम उसी तरह आसमान की बादशाही में बांधा जाएगा। सोचें कि मरियम ने इस जमीन पर किया क्या था। आज के हालात में ये ऐसा बेशकीमत इत्र था कि इसे खरीदने पर एक ही वक्त में कई सालों की उजरत देनी पड़ती। जब यहूदा इस्करियोती ने यह देखा तो बहुत गुस्सा हुआ और कहा, यह फजूल खर्ची क्यों है? जैसा कि हम इस बयान पर गौर करते हैं, तो क्या मरियम ने ऐसा इसलिए किया कि उसने इत्र को बेशकीमत नहीं समझा था, या इसलिए कि वो खुदा को कहीं ज्यादा कीमती समझती थी? चूंकि यीशु उसके लिए ज्यादा कीमती थे, उसने इस बात को जाना और इस पर अमल किया। ताहम यहूदा इस्करियोती ने अपनी हमाकत में यीशु की निस्बत इत्र को कीमती समझा। नतीजतन उसका यह शरीर दिल बढ़ता चला गया और उसमें शैतान समा गया।
यहूदा ने यीशु को मसलूब होने के लिए धोखा दिया, लेकिन उसका अंजाम किया हुआ। उसने एक अफसोसनाक अंजाम पाया और खुद को फांसी देकर हलाक कर लिया, और जो 30 चांदी के सिक्के उसने लिए थे वो कभी इस्तेमाल भी न कर सका। ऐसा मामला नबूवत में भी जाहिर होता है, हाता के दाऊद के दिनों में भी, जो मसीह को जाहिर करता है। आए हम दूसरा समूएल बाब 17 में इकट्ठे इस मंजर का जायजा लेते हैं। हम इकट्ठे आयत 22 पढ़ते हैं। तब दाऊद और सब लोग जो उसके साथ थे उठे और यरदन के पार गए, और सुबह की रोशनी तक उनमें से एक भी ऐसा न था जो यरदन के पार ना हो गया हो। जब अखीतोफेल ने देखा कि उसकी मशूरत पर अमल नहीं किया गया, अखीतोफेल दाऊद बादशाह का मुशीर था। ताहम जब दाऊद बड़ी मुसीबत में था तो अखीतोफेल ने उससे गद्दारी की और उसके दुश्मनों के साथ शामिल होकर उन्हें सलाह दी। ताहम खुदा ने मुदाखलत की ताकि अखीतोफेल की सलाह कबूल न की जाए। उन्हें अखीतोफेल की बजाय हूसी नाम के आदमी की बात सुनने के लिए आमादा किया गया था। उसने अपने गधे पर जीन कसा और उठकर अपने शहर को अपने घर गया और अपने घराने का बंदोबस्त करके अपने को फांसी दी और मर गया और अपने बाप की कब्र में दफन हुआ। अखीतोफेल दाऊद के करीब था जैसे यहूदा इस्करियोती यीशु के करीब था। अखीतोफेल दाऊद के दुश्मन के साथ जा खड़ा हुआ और उसके खिलाफ साजिश की, लेकिन जब उसकी सलाह बिलाखिर रद्द कर दी गई तो उसने अपने वतन लौटकर खुद को फांसी दे दी। इसके जरिए हम किताब मुकद्दस की नबूवतों से देख सकते हैं कि दाऊद यीशु को जाहिर करता है और अखीतोफेल यहूदा इस्करियोती को जाहिर करता है। दाऊद और यीशु, अखीतोफेल और यहूदा इस्करियोती। यहाँ हम एक बार फिर तस्दीक कर सकते हैं कि पुराने अहदनामा की तमाम नबूवतें नए अहदनामा में पूरी होती हैं। तो फिर इस जमीन पर होने वाली सब चीजों का क्या बनता है? वो सब आसमान पर भी पूरी होती हैं। चूंकि सब कुछ उसी के मुताबिक पूरा होता है, इसलिए हमें जल्द तौबा करनी चाहिए और अपनी ईमान की जिंदगी में ऐसे हर कौल व फेल से मुंह मोड़ना चाहिए जो खुदा को जलाल देने में नाकाम हो, ताकि हम उनकी पसंदीदा मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारें। फिलहाल शायद हम सब कुछ पूरी तरह न समझ पाएं, ताहम आखिरी दिन जब खुदा सब लोगों की उनके अमाल के मुताबिक अदालत करेंगे तो वो हर चीज को उसकी मुनासिब तरतीब में रखेंगे। इसलिए हम सिय्योन के फर्जंदों को अपने शुक्रगुजार दिलों को नहीं खोना चाहिए और आखिर तक वफादारी से उनकी पैरवी करनी चाहिए, चाहे वो हमें कहीं भी ले जाएं। सही। मेहरबानी से गौर करें कि जब खुदा जिस्म में इस जमीन पर आए तो लोगों ने कैसे उनकी खिदमत की। सूबेदार ने कैसा सलूक किया, ज़िकाई ने कैसा इस्तकबाल किया और मरियम ने किस दिल से उनकी खिदमत की। आप देखेंगे कि जमीन पर जिन्होंने ऐसा काम किया वो आसमान की बादशाही के लिए मुकद्दर थे, क्योंकि वो हैं जो आसमान पर भी ऐसा ही करेंगे। इसके बरक्स यहूदा इस्करियोती जैसे लोग आसमान में भी ऐसा ही अमल करेंगे। यही वजह है कि खुदा इस जमीन पर उनके सब काम पहले ही देख रहे हैं। ये वही उसूल है जैसे खुदा ने इसराइलियों को बियाबान में उनके 40 बरसों के दौरान पेशगी परखा और तैयार किया ताकि वो मुल्की कनान में दाखिल होने के बाद अपने फराइज अंजाम दे सकें। इसलिए आज आगे से नए दिल और नई रूह के साथ आएं। हम सब रूहुल कुद्स में चलने और रूहुल कुद्स की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने का अज़्म करें। अब जबकि हम अच्छी तरह जान चुके हैं कि दाऊद यीशु को जाहिर करता है, तो हम यिर्मयाह बाब 30 आयत 9 की तरफ भी जाते हैं। पर वो खुदावंद अपने खुदा की और अपने बादशाह दाऊद की, जिसे मैं उनके लिए बर्पा करूंगा, खिदमत करेंगे। तो फिर नए अहदनामा में ये नबूती दाऊद आखिरकार किसे जाहिर करता है? हम सब ने सीखा है कि दाऊद यीशु को जाहिर करता है। तो फिर जिस तरह दाऊद के साथ अखीतोफेल था, यीशु के साथ कौन था? ये यहूदा इस्करियोती था।
आए हम यूहन्ना बाब 13 आयत 7 की तरफ जाते हैं। यीशु ने जवाब में उससे कहा कि जो मैं करता हूं तू अब नहीं जानता। तू अब नहीं जानता कि मैं ये क्यों कर रहा हूं, मगर बाद में क्या होगा समझेगा। पतरस ने उससे कहा कि तू मेरे पांवों अबद तक कभी धोने ना पाएगा। यीशु ने उसे जवाब दिया कि अगर मैं तुझे न धोऊं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं। शमाउन पतरस ने उससे कहा, ए खुदावंद, सिर्फ मेरे पांवों ही नहीं बल्कि हाथ और सर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसको पांवों के सिवा और कुछ धोने की हाजत नहीं, बल्कि सरासर पाक है, और तुम पाक हो लेकिन सबके सब नहीं। चूंकि वो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसलिए उन्होंने क्या कहा, वो चोर और इब्लीस है। यीशु पहले ही जान चुके थे कि कौन उन्हें धोखा देगा, इसलिए उसने कहा, तुम सब पाक नहीं हो। हम यूहन्ना बाब 17 आयत 12 से भी देखते हैं, जब तक मैं उनके साथ रहा मैंने तेरे उस नाम के वसीला से जो तूने मुझे बख्शा है उनकी हिफाजत की। मैंने उनकी निगहबानी की और हलाकत के फर्जंद के सिवा उनमें से कोई हलाक ना हुआ, ताकि किताब मुकद्दस का लिखा पूरा हो। ये अल्फाज किसके लिए हैं? आखिरकार ये अल्फाज यहूदा इस्करियोती की तरफ इशारा करते हैं। फिर भी यीशु ने ये जानकर भी यहूदा इस्करियोती को अपने साथ रखा और आखिर तक उसके साथ चलते रहे। अब हम मरकज बाब 14 आयत 20 की तरफ जाते हैं। उसने उनसे कहा कि वो 12 में से एक है जो मेरे साथ तबाक में हाथ डालता है, क्योंकि इब्ने आदम तो जैसा उसके हक में लिखा है जाता ही है, लेकिन उस आदमी पर अफसोस जिसके वसीला से इब्ने आदम पकड़वाया जाता है। अगर वो आदमी पैदा ना होता तो उसके लिए अच्छा होता। यीशु यहूदा इस्करियोती को इसी नजर से देखते थे। सबसे बढ़कर उसमें मादी चीजों के लिए कमजोरी थी। पैसे को खुदा पर तरजीह देने वाली ये जहनियत बिलाखिर उसे ऐसे मकाम पर ले गई जहां उसने यीशु को चांदी के 30 सिक्कों के इस बीच डाला। अब हम एक शख्स के इंद्राजात देख रहे हैं जो 2000 साल पहले यीशु के जमाना में वक्कू में आने वाले ऐसे बुरे कामों में सबसे आगे था। अगर ये आप पर मुनहसिर होता तो आप किस किस्म के लोगों को आसमान की बादशाही में दाखिल करते और आप किन को दाखिल होने से रोकते? अगर एक खतरनाक डाकू आपके दरवाजे पर दस्तक देकर जोर से कहे, दरवाजा खोलो, मैं अंदर आ रहा हूं, तो आप क्या करेंगे? अगर कोई चोर या बदकार शख्स ऐसा करे तो आप क्या करेंगे? बेशक आप दरवाजा नहीं खोलेंगे। आसमान के दरवाजों पर भी यही बात सादिक आती है। जो इस जमीन पर किया गया है वो उसी तरह आसमान में भी पूरा होता है। इसलिए आसमान की बादशाही में जो मकाम और हैसियत हम हासिल करना चाहते हैं वो बड़ी हद तक इस जमीन पर हमारी जिंदगी से तय होती है। इसलिए हमें अपनी ईमान की जिंदगी रासत तौर पर गुजारनी चाहिए। मुल्की कनान की जिंदगी पर तवज्जो मरकूज करने से पहले अगर हम पहले गौर करें कि बयाबान में अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी है, तो फिर चाहे हमें कैसी ही मुश्किलात का सामना हो, हम खुदा का शुक्र अदा करेंगे। अगर कोई शख्स बयाबान में 40 साला सफर के दौरान खुदा को फरामोश न करे और उन्हें जलाल देता रहे, तो वो यकीनन कन्हान की सरजमीन में दाखिल हो सकेगा। क्या यही मामला यशुआ और कालिब के साथ नहीं था? इसकी वजह यह है कि खुदा जानते हैं कि ऐसे लोग मुल्की कनान में दाखिल होकर भी उन्हें जलाल देंगे। उन लोगों पर गौर करें जिन्होंने इस दुनिया में जो एक नकल और अक्स है खुदा की मुखालफत की, शिकायतें की और बुड़बुड़ाते रहे। उन्होंने कोई शुक्रगुजारी नहीं दिखाई, खुदा के फजल को पुरानी जूती की तरह फेंक दिया और सच्चाई को मामूली समझा। अगर ऐसे लोगों को आसमान की बादशाही में दाखिल होने दिया जाए तो वो सिर्फ अफरातफरी पैदा करेंगे। बस खुदा ने क्या कहा था? हम मुकाशफा बाब 21 आयत 23 की तरफ जाते हैं।
اور اس شہر میں سورج یا چاند کی روشنی کی کچھ حاجت نہیں، کیونکہ خدا کے جلال نے اسے روشن کر رکھا ہے اور برہ اس کا چراغ ہے، اور قومیں اس کی روشنی میں چلیں پھریں گی، اور زمین کے بادشاہ اپنی شان و شوکت کا سامان اس میں لائیں گے، اور اس کے دروازے دن کو ہرگز بند نہ ہوں گے اور رات وہاں نہ ہوگی، اور لوگ قوموں کی شان و شوکت اور عزت کا سامان اس میں لائیں گے، اور اس میں کوئی ناپاک چیز یا کوئی شخص جو گھنونے کام کرتا یا جھوٹی باتیں گھڑتا ہے ہرگز داخل نہ ہوگا، مگر وہی جن کے نام برہ کی کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں۔ آسمان کی بادشاہی اس طرح کے لوگوں کے لیے ہے۔ اسی وجہ سے خدا اپنے کلام میں دوسرے لوگوں کو ملامت کرتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ اے بدکارو، میرے پاس سے چلے جاؤ۔ وہ انہیں اس لیے نکال دیتے ہیں کہ اگر وہ آسمان میں داخل ہوتے تو وہ ناگزیر طور پر خدا کے احکام کی نافرمانی کرتے، بے دینی کا ارتکاب کرتے، اور ان کے فرامین، قوانین و آئین کو تباہ کر دیتے۔ آسمان کی بادشاہی دوبارہ ہرگز ایسی جگہ نہیں بننی چاہیے۔ اس لیے آسمان کی بادشاہی ایسی جگہ نہیں ہوگی جہاں ایسے لوگ داخل ہو سکیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے نام برہ کی کتاب حیات میں درج ہیں، ان کے لیے جو خوشی اور شکر گزار دل کے ساتھ برہ کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں جہاں کہیں وہ لے جاتا ہے، ان کے لیے جو پرفضل طور پر خدا کے احکام کو عزیز رکھتے اور خدا پر ایمان رکھتے، اور ان کے لیے جو آخر تک برہ کے ساتھ رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کردار انہوں نے اس زمین پر بنایا تھا وہ ان کے ساتھ آسمان پر قائم رہے گا۔ اسی لیے کتاب مقدس یہ تعلیمات درج کرتی ہے کہ ہمیں اپنی ایمان کی زندگی درست طور پر گزارنی چاہیے۔ جب ہم آسمان کی بادشاہی کی طرف سفر کریں تو ہم صابر بنیں اور ضبط نفس اختیار کریں۔ آئیں ہم صبر اور برداشت کریں، اور آئیں ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں اور محبت اور ہم آہنگی میں متحد رہیں۔ کتاب مقدس بیان کرتی ہے کہ وہ جو آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں فساد برپا کرنے والے نہیں بلکہ صلح کروانے والے ہیں۔ ہم سب کو وہ لوگ بننا سیکھنا چاہیے جو صلح کر سکتے ہیں۔ ہمیں ہرگز یہودا اسکریوتی کی طرح فساد برپا کرنے والے نہیں بننا چاہیے جو یسوع کے دل کو دکھ اور تکلیف پہنچائے اور آخر کار انہیں مصلوب کروانے کا سبب بنے۔ کیا ہمیں پرانے عہد نامہ میں اکن کی کہانی میں بھی ایسا ہی واقعہ نظر نہیں آتا؟ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ملک کنعان میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا شہریریہو فتح کیا گیا تھا۔ شاید کوئی بھی شخص مادی چیزوں یا دولت کی خواہش سے مکمل طور پر آزاد نہیں ہوتا، لیکن یہودا اسکریوتی جیسا مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب یہ خواہش ہمارے دل میں آسمان کی قدر سے بڑھ جاتی ہے۔ چونکہ یہودا اسکریوتی نے خدا سے زیادہ دنیاوی فائدے کی قدر کی تھی، اس لیے وہ خدا کو مصلوب کرنے میں شریک ہونے سے بھی نہیں ہچکچایا۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آئیں ہم مستعدی سے آسمان کی بادشاہی کی طرف دوڑیں۔ اس کے ساتھ میں اس واز کو ختم کرنا چاہوں گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔